ladies and gentlemen, the Congress really knows how to stretch a suspense. It ended its Amethi and Raebareli suspense on the final day, that is today, for nominations for Phase 5. And well, they have sprung a surprise. Everyone was waiting for Priyanka Gandhi Vadra to finally take the poll plunge from Raebareli. That has not happened. What has happened, though, is that Rahul Gandhi today ended up filing his nomination from Raebareli. So after 20 years, he has bid farewell to Amethi, a seat that he has won 3 times in a row from 2004, before Smriti Irani came along in 2019 and won. The seat, that is the seat of Amethi, has now gone to a long-term Gandhi loyalist, Kishori Lal Sharma. Rahul Gandhi has moved to Raebareli, which is his mother's constituency, which probably also is the safest seat for the Congress in Uttar Pradesh. In fact, it was the only seat that the Congress had won in Uttar Pradesh in 2019. Today, in the presence of his mother Sonia Gandhi, sister Priyanka, brother-in-law Robert Vadra, Rahul filed his nomination from Raebareli, where elections will be taking place on May 20th. The BJP says Rahul going to Raebareli proves that the Congress is aware it is losing Amethi. The Prime Minister also found the time to throw in a taunt. Listen in. हम लोग अतिथियों के स्वागत में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। इतना ही कह दूं कि अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है, क्योंकि अगर उन्हें लगता कि यहाँ जीत की कोई भी गुंजाइश है तो वो यहाँ से लड़ते, अपने प्रॉक्सी को ना लड़ाते। मैंने तो पहले ही कहा था कि इनकी बड़ी ने मैंने पार्लियामेंट में कहा था, तब तो चुनाव को 2 महीने की 3 महीने की देर थी। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई। हुआ भी यही। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग गुम गुम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। Now, why did Rahul Gandhi leave Amethi? After all, we are talking about a seat that he's won 3 times. Let's look at the vote share in the last 3 elections, and that should give you an answer. In 2009, this is the first time that Rahul is contesting the elections, he gets 71% votes, the highest for any candidate since his late father, Rajiv Gandhi. Cut to 2014, the Modi wave takes over India. But Rahul still emerges winner from Amethi with a vote share of 46.7%. From 71%, there's a drop of 46.7% votes in Amethi. Then what happens in 2019? The bastion was breached as Smriti Irani scored 1 over Rahul Gandhi in the second time. His vote share by then had fallen to 43%, 71 to 43%. So the vote share has been declining. The fact also is that Smriti Irani has been going to Amethi for the last 10 years now, making a connect with people. So people are talking about good roads, they're talking about better infrastructure, which was deprived of resources despite electing a Gandhi 9 times, which means her work track record in Amethi has been good. Seeing the current mood, the Congress party was seriously concerned that not only could Rahul Gandhi lose again, the defeat margin might be bigger, larger than last time.
So, okay, it was decided Rahul will not return to Amethi for a 5th time. The question was, where else? Well, the simple answer was right next doors in Raebareli. Just like Amethi, Raebareli is a bastion of the Congress and the Gandhis. In the 20 elections since 1952, 17 of them have been won by the Congress party at an unbelievable strike rate of 85%. A Gandhi has represented this constituency for nearly 40 years. As I said, Raebareli is also the only seat that the Congress won from Uttar Pradesh in 2019. And since 1999, Sonia Gandhi has been elected from Raebareli every single time she fought. Will this gambit pay off for the Congress, or is it going to be the end of the Gandhi dominance in the Hindi heartland? That is something that I'm asking my guests who are joining me this evening. Acharya Pramod Krishnan is an ex-Congress leader, someone who was advisor to Priyanka Gandhi. Dr. Kushal Kant Mishra is spokesperson of the BJP. Tushar Gupta is a political analyst. Tehseen Poonawalla is a political analyst as well. And Pankaj Vora is a senior journalist. Thank you everyone for being here. किससे शुरू करूं? Maybe I think I should start with Acharya Pramod Krishnam because he's come all the way to the studio, and God knows on a Friday evening to come to a Noida studio is not easy. आचार्य जी, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप कह रहे हैं प्रियंका गांधी के साथ धोखा हो गया. क्या धोखा हो गया भाई? वो नहीं लड़ना चाहती इलेक्शन, उनके भाई लड़ रहे हैं रायबरेली से. परेशानी क्या है? देखिए, देखने में तो ये अच्छा लगता है, कि सुनने में भी अच्छा लगता है, कहने में भी अच्छा लगता है कि इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते. लेकिन इलेक्शन कौन नहीं लड़ना चाहता? अगर इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते तो पॉलिटिक्स में फिर क्यों आता आदमी? एवरीबडी वांट्स के भी वो संसद में जाए. तो प्रियंका गांधी भी लोकप्रिय नेता हैं, कांग्रेस की सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं. तो मुझे लगता है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो ठीक सोच रहा हूँ, और मैं इस बात को कहने में बिल्कुल कोई हिचक नहीं रखता हूँ कि उनके खिलाफ पार्टी में और परिवार में एक बहुत बड़ी साजिश हुई है उनको रोकने के लिए. जहाँ तक सवाल है अमेठी का, तो राहुल गांधी जी को अमेठी लड़ना चाहिए था. नहीं, परिवार में साजिश कैसे हुई है? भाई बहन और मदर बहुत थिक हैं. अब परिवार में ऐसी परिवार में साजिश कैसे हो सकती है? और अगर उनको लड़ना ही था इलेक्शन तो उनको रोक कौन रहा था? इतने साल से उनको किसने रोका है? ये तो बड़ा सवाल है कि कौन रोक रहा है. ये बड़ा सवाल इसलिए उठता है कि जब प्रियंका गांधी ने पॉलिटिक्स ज्वाइन की और वो पहली बार कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी बन के यूपी की इंचार्ज बनाई गई, तो आधी स्टेट की इंचार्ज बनाई गई. ये पहली बार हुआ कांग्रेस की हिस्ट्री में कि कोई जनरल सेक्रेटरी को स्टेट भी आधा दिया गया हो. नंबर 1. और इसकी पूरा सीरीज देखिएगा, पूरी क्रोनोलॉजी समझिएगा इसकी. दूसरी बार जब राहुल गांधी जी का इस्तीफा हुआ तो ये आवाज़ उठी कि प्रियंका गांधी को कांग्रेस की कमान सौंप दी जाए. मैं भी उनमें से एक था ये कहने वाला कि हाँ, प्रियंका गांधी इज़ द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ दिस कंट्री, और कांग्रेस पार्टी के अंदर वो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता हैं. सबसे ज़्यादा मासेज में उनकी अपील है, तो उनको कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाए. लेकिन नहीं बनाया गया. फिर एक डिमांड उठी उदयपुर चिंतन शिविर में, जब पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग हो रही थी. खड़गे जी उसको प्रिजाइड कर रहे थे, सोनिया गांधी अध्यक्ष थी, एंड पीएसी में मैं मेंबर था. मैं उस मीटिंग में था. मैंने सबके सामने बोला, और उस मीटिंग में गुलाम नबी आज़ाद थे, तब पार्टी नहीं छोड़ी थी उन्होंने. शशि थरूर थे, जनार्दन द्विवेदी थे, कमलनाथ जी थे, एंड भूपेश बघेल थे. ऑल सीनियर लीडर वर देयर. मैंने ये आवाज़ उठाई कि अगर प्रियंका गांधी को कमान दी जाए तो बहुत अच्छा रहेगा. लेकिन उसके बाद हुआ उल्टा. और तीसरी बात सुनिएगा, उसके बाद फिर ये हुआ कि कांग्रेस की अध्यक्ष प्रियंका गांधी नहीं बनेगी, तो कौन बनेगा? तो खड़गे जी का चुनाव हो गया. उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर ये मांग उठी कि कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट प्रियंका गांधी जी को बना दी जाए. हाँ. नहीं बनाई गई. उसके बाद ये मांग उठी कि वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाए. नहीं बनाई गई. और जब जनरल सेक्रेटरी बनाया गया इस बार, तो कितना गलत ऑर्डर निकला. हाँ. केसी वेणुगोपाल के हस्ताक्षर से जो ऑर्डर निकला, जो प्रेस रिलीज जारी हुई, उसमें लिखा कि प्रियंका गांधी जनरल सेक्रेटरी विदाउट एनी पोर्टफोलियो, यानी प्रियंका गांधी को कोई काम नहीं दिया गया. तो ये बिना राहुल गांधी की सहमति के कैसे संभव था? नहीं, तो ये तो आप एज दे से फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स है कि यू आर लीविंग दैट डाउट ऑफ सस्पिशन. मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी को अमेठी लड़ना चाहिए था. क्यों लड़ना चाहिए था? व्हाई शुड दे फॉल इन फॉर द बीजेपी's प्रेशर? बीजेपी बोलती रहे जो बोलेगी. बीजेपी की वजह से थोड़ी ना कांग्रेस पार्टी अपनी स्ट्रेटेजी बनाएगी. उनका नॉर्थ साउथ बैलेंसिंग एक्ट उनको करना है, वो रायबरेली से और वायनाड से कर रहे हैं. व्हाट्स द प्रॉब्लम? एब्सोल्युटली यू आर राइट, बट राहुल गांधी इज नॉट ऑर्डिनरी लीडर.
राहुल गांधी वो लीडर हैं जो नरेंद्र मोदी के सामने अपने आप को प्रस्तुत करना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी को हर बात पे क्रिटिसाइज करते हैं। इस देश में अगर किसी की जेब कट जाए तो कहते हैं नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं, किसी का कुत्ता खोया जाए कि नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं, देश में कुछ भी हो जाए नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं। और राहुल गांधी वो व्यक्ति हैं जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होती है तो उसमें कहते हैं डरो मत, अपने कांग्रेस के नेताओं को कहते हैं, फिर पब्लिक मीटिंग में पब्लिक को कहते हैं डरो मत, उसके बाद मीडिया से कहते हैं कि तुम सब डरते हो, डरो मत। जो आदमी सबको कहता है कि डरो मत, वो चुनाव हारने से डर गया। चुनाव हारने से तो सब लोग डरेंगे, और चुनाव को जीतना एक स्ट्रेटजी है। ही हैज पिक्ड अ सेफ सीट, ये तो अकलमंदी का काम है ना। नो वो अपना व्हाई विल ही डिग हिज ओन ग्रेव? लिसन, ये देश भावनाओं का देश है। ये परसेप्शन, राहुल गांधी का परसेप्शन आज से पहले क्या था कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को चुनौती देते हैं, राहुल गांधी डरते नहीं है। आज परसेप्शन बदल गया। दिस इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट फॉर दिस पार्टी। ठीक है। जैसे और सुनिए, इससे लाखों कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे जिनका मॉरल ऊपर उठ रहा था वो गिर गया। उन्हें लगा कि राहुल गांधी के साथ इसलिए ही थे कि राहुल गांधी डरते नहीं है। आज ये हो गया राहुल गांधी हारने से डरते हैं। और अगर इतना ही बड़ा वो था, इतना बड़ा वो थी बात, अमेठी से नहीं लड़ना था तो अमेठी से प्रियंका गांधी लड़ सकती थी। ये भी दो बातें, मैं दोनों बातें कह के जा रहा हूँ। राहुल गांधी को नहीं लड़ना चाहिए था। राहुल गांधी अगर नहीं लड़ते तो प्रियंका गांधी को अमेठी लड़ा देते, लेकिन ना प्रियंका गांधी को अमेठी लड़ाए, वो खुद रायबरेली पहुंच गए। अगर सीट शिफ्ट करनी थी तो फिर नरेंद्र मोदी के सामने बनारस लड़ते। ठीक है, तो हियर्स द रिक्वेस्ट, आप आए हैं इतनी दूर से, डिस्कशन है, सुनिए और अगर आपको पार्टिसिपेट करिए आपने। हाँ चलिए, डॉक्टर कुशलकांत मिश्रा आप हैं हमारे साथ जुड़े हुए, तुषार गुप्ता यू आर विद अस, तहसीन यू आर विद अस, एंड पंकज बोरा इज विद अस एज वेल। तहसीन पूनावाला, would you want to respond to what Acharya Krishnam is saying? He's an ex-Congress leader. Now he has open alliances with the BJP, but he's saying for a leader who kept saying डरो मत, डरो मत, डरो मत, आज राहुल गांधी खुद ही डर गए। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छा चलिए, उस साजिश की बात तो सास भी कभी बहू थी टाइप साजिश लग रही है मुझे, लेकिन चलिए फर्स्ट लेट तहसीन पूनावाला रिस्पॉन्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात तो एक सेकंड तहसीन, बस 5 सेकंड। ये बात आप इसको एक टेलीविजन डिबेट का पार्ट समझ के इसको खारिज मत करिएगा। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि प्रियंका गांधी के खिलाफ पार्टी में और परिवार में एक साजिश हुई है उन्हें रोकने के लिए। तहसीन गो अहेड। मेरा साफ मानना है। आचार्य जी पायला गो आशीर्वाद बना रहे। For your viewers, I always call up Acharya ji and take a lot of political advice from him. So he's somebody I hold in very high regard. But Acharya ji's got this one wrong with humility. Look, this was a master stroke. After Srimati Sonia Gandhi ji left Raebareli, Raebareli was the toughest seat to win because there was no representation of the Gandhi family. So Rahul ji has actually taken poison and he's contesting from Raebareli. Amethi to anyone can win because there was so much anti-incumbency against the present MP, so much anti-incumbency that any Karyakarta would have won by 50,000 votes. Now KL Sharma ji has come by 1,25,000 votes. So Rahul ji has taken a tougher thing. Secondly, today Rahul ji has proved to the country, and Mirror Now viewers are seeing it, that he's a pan-India leader. He can fight from North India and South India. Can Honorable Prime Minister go to South India? That proves Rahul Gandhi's mettle. As for what Acharya ji said about Priyanka ji being in parliament, I want to tell Acharya ji, absolutely, that I concede to completely. He knows that I told Priyanka ji that Kanyakumari is a good seat she should have fought when the MP passed away. But nevertheless, I'm telling you this as a matter of fact. Priyanka ji will also be in parliament simply because she's the best Congress orator, particularly in Hindi and very articulate. So both siblings will be in parliament soon. Acharya ji, आशीर्वाद दीजिए। तहसीन, I find it extremely interesting that you're saying अमेठी तो कोई भी जीत सकता है। हाँ, because there is Raebareli is the toughest seat to win. Come on, Tehseen. Because Sonia ji left Raebareli. जी आचार्य जी। Simple question. In जी। 2019 election, जी। Mayawati was with Rahul Gandhi, समाजवादी पार्टी with also समाज Rahul Gandhi. और इस बार जो है मायावती जी ने अपना कैंडिडेट दिया है जिसका नाम है नन्हे सिंह चौहान।
तो जो मायावती को वोट मिला था वो भी वो मायावती की सपोर्ट में जो वोट था, मायावती जी की सपोर्ट से जो राहुल गांधी जी को वोट मिलता वो इस बार नहीं मिल रहा था, तो 1.5 लाख तो वही घटा दो। तो आप कैसे कह रहे हो कि अमेठी बड़े आसानी से जीत सकते हैं? जब राहुल गांधी खुद अमेठी नहीं जीते तो क्या राहुल गांधी जी के साथ काम करने वाला कोई व्यक्ति जीत जाएगा? बहुत अच्छा सवाल है आचार्य जी। जबकि मायावती का सपोर्ट नहीं है इस बार। नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा सवाल है आचार्य जी का। लेकिन आचार्य जी भी जानते कि पॉलिटिक्स में, राजनीति में गणित से ज्यादा केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट रहती। तो जो अमेठी की आवाम है, जनता है, वो त्रस्त हो गई वर्तमान सांसद से। तो कोई भी आचार्य जी, इसमें कोई भी हरा देगा सांसद को। रायबरेली टफर थे, इसमें राहुल गांधी जी विश पीकर वहां गए और अमेठी में के शर्मा जी हरा देंगे। और इससे क्या हो गया मैं बता देता हूँ क्या होता है। मैं बताइए इसमें क्या होगा। ये जो वर्तमान सांसद है, जो करना चाहती थी राहुल गांधी वर्सेस हर, वो पंक्चर हो गया। वो पूरी तरह से पंक्चर हो गया, वो दोबारा पंक्चर हो गया। अब मुद्दों पर इलेक्शन होगा। अमेठी में जो विकास एंटी इनकम्बेंसी है और रायबरेली में एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। नहीं है ना, इसलिए राहुल जी गए। लेट्स गेट इन द अदर गेस्ट। इसलिए गए ना राहुल जी, स्पीकर गए वहां। लेट्स गेट इन द अदर गेस्ट। डॉक्टर मिश्रा, ठीक। डॉक्टर मिश्रा, वुड यू वांट टू कम इन हियर? तहसीन इज सेइंग कोई भी जीत सकता है अमेठी, नो प्रॉब्लम। टफ टू विन इज रायबरेली, दैट इज व्हाई राहुल गांधी हैज गॉन देयर। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू इट? इसमें मैं यही कहना चाहूंगा, एक गाना आया था भाग राहुल भाग, बहुत पहले गाना आया था, तो वही हाल हुआ है। राहुल गांधी अमेठी से हारे और भागे और 5 साल में 5 बार भी नहीं आए। इसी को कंपेयर करें अगर हम स्मृति जी को, स्मृति जी जब 14 में हारी थी तो 14 के बाद वो डटी रही और उसके बाद उन्होंने 19 में जीता, क्योंकि उन्होंने करके दिखाया, वो जनता के बीच में थी। श्रेया जी, एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि रायबरेली हो या अमेठी हो, दोनों जगह इस खानदानी परिवार का घर खुद का नहीं है। दोनों जगह न गांधी फैमिली का कोई घर नहीं है, जबकि ये दोनों संसदीय क्षेत्र ऐसे हैं जिन्होंने सालों तक प्रधानमंत्री दिए, देश की सबसे बड़ी और देश की सबसे पुरानी पार्टी का लीडर्स को दिया। उसके बाद भी वहां के लोगों को अपने सांसद का घर नहीं मिला। कम से कम स्मृति जी ने अपना घर बनाया पहली बार और उसके गृह प्रवेश में सब लोगों को बुलाया, अमेठी वालों को। और अमेठी में जिस तरीके से 62% घरों में बिजली नहीं थी, 83% घरों में शौचालय नहीं थी, 200 से ज्यादा कारखाने बंद हो चुके थे, जबकि आज करीब 6000 एमएसएमई की यूनिट चालू हो गई हैं, रेलवे की डबल लाइन पड़ रही है, अमेठी में सीएचसी बन गया है, अमेठी में बाईपास बन गया है, मेडिकल कॉलेज बन गया है, पूरी डेवलपमेंट। यहां पर लड़ाई श्रेया जी विरासत वर्षित विकास की थी और उस विकास की लड़ाई में राहुल गांधी अपनी सीट छोड़ के भाग गए। और देखिए वायनाड में भी भरोसा नहीं रहा, इसलिए वहां से छोड़ करके दोबारा रायबरेली में गए। और आज भी मेरे को अगर कोई तकलीफ होती है तो मैं अपनी माँ की गोद में जाता हूं। अच्छी बात है अपनी माँ की गोद में जाना, लेकिन कम से कम जीत की आशा के साथ जाना चाहिए, डर की आशा के साथ नहीं जाना चाहिए। Dr. Mishra, but the fact is that the Prime Minister has also in the past contested from 2 seats, ना? तो ऐसा नहीं है कि डर की वजह से लोग 2 सीट कॉन्टेस्ट करते हैं, पॉलिटिकल मैसेजिंग भी होती है। तुषार गुप्ता, I just want to bring you in here. The fact is that the BJP has been going hammer and tong against the Congress party, saying, एक सेकेंड, the BJP has been going hammer and tong against the Congress party, saying Rahul Amethi. The question is, why should the Congress fall for their pressure and propaganda? They will do what is best for them. If they feel that Rahul Gandhi is best suited to Raebareli, they will make him fight from Raebareli. Why cast aspersions and say, ये तो भाग गया, अपनी बहन को सीट नहीं दी, etc., etc.? No, let's leave the conspiracy theories out. Absolutely, it's the right of the Congress to field the candidate they want to from the seat they want to. But then I have a simple question for the Congress representatives. If you had to have Rahul Gandhi fight on the Raebareli seat, which you consider a family bastion, which you consider to be a safe seat, you as in the Congress, then why fight in Wayanad? Why not share that seat with the communists? And all the warring that happened between the Kerala CM and the Rahul Gandhi faction could have been avoided. I say if Rahul Gandhi indeed had to contest from Raebareli, why not have the Samajwadi field a strong candidate from Amethi and let the Congress have a strategic vote transfer on the ground? That is how a political alliance works. That has not been going on. आप सुबह के 6 बजे नॉमिनेशन के आखिरी दिन आप अपने पोस्ट कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी रायबरेली से लड़ेंगे। इसमें क्या पॉलिटिकल मैसेजिंग है? पॉलिटिकल मैसेज ये होती है कि हम वायनाड लड़े, अब डंके की चोट पे हम रायबरेली लड़ेंगे। या आप सुबह के अंधेरे में आपका अनाउंसमेंट आ रहा है फॉर्मली, आप वहां जा रहे हैं,
नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। अमेठी के केएल शर्मा के साथ कौन खड़ा था? गांधी परिवार के आज वहां 4 लोग थे, कौन था केएल शर्मा के साथ? Nevertheless, since Tehseen says Amethi is easy to win, why not then Rahul Gandhi have it back? Amethi and Raebareli, between the two constituencies, the Gandhi family and the Gandhi family alone held it for 70 years, 70 political years. And they're not interested in Amethi. I find it hard to believe. And one more fact, Shreya, since you are fond of numbers, between 2009 and 2019, Congress's vote share has fallen by 22% in the Lok Sabha elections. In the meantime, BJP's vote share has gone from 3% in 2009 to 38% in 2019. Between 24 and 29, they received a massive 82% jump in their vote share in Raebareli, and both times Sonia Gandhi won. But the BJP registered a very high jump. So if the BJP gets the momentum from Amethi, if there is some anger against Rahul Gandhi on the ground, you never know, there could be a huge upset on the cards for the Congress. Okay, Pankaj Vora, according to you, what is this? Is this Rahul Gandhi running away from a fight, or is this a master stroke, as Tehseen is saying? Well, it's, the option for where he should be contesting was with Rahul Gandhi, and if he has chosen Raebareli, it is because of the following reasons. Number one, Raebareli is a legacy seat. It was held by Rahul's grandfather. His, grandmother was held by his mother. Now he's, shifted out there, and it is his option or his choice where to contest from. It makes no difference. I mean, Mr. Atal Bihari Vajpayee was the Prime Minister. He has the record of contesting from maximum number of constituencies. He contested from New Delhi, he contested from Balrampur, he contested from Vidisha, he contested from Gwalior, he contested from Gandhinagar, he contested from Lucknow. I mean, is it to say that he was running away from each time when he changed his constituency? I mean, this is an argument I don't buy. Number two, Amethi is, all the figures which are being cited, every election is a different election. What has happened in the past need not be repeated in the election that follows. So in a fresh election, anything is possible. The scenario in Uttar Pradesh and in every constituency has changed a bit, and we have to, these elections will determine whether the percentages are static or are going to change. There is, the Muslim vote bank has come back to the Congress. There's a sizable section of Dalits who have come back to the Congress. And, one is to see, whether other sections are also coming back to the Congress or not. It's, it's very difficult to assume that, so-and-so is winning and so-and-so is losing. And elections throw many surprises. If a leader like Indira Gandhi, who was the greatest mass leader as per BBC of the last century, could lose from Raebareli in 1977, anybody can lose from anywhere. So there's nobody who's strong, there's nobody who's weak. Fair point. Each election determines Fair who point. will win So you or are who saying, will not. You are saying this Bhagoda tag really is unfair. Pankaj Vora, you are saying this Bhagoda tag is really unfair, and you just need to compare it to the number of seats that former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee had fought from. Okay, just I think Pramod Acharya wants to respond to you. Sir, 10 seconds है मेरे पास, आप कर लीजिए. Why is this such a big deal or such a big issue? 1 second, Mr. Vora. Okay, let Pramod Acharya respond to you. देखिए, ये पंकज बोरा जी जो कह रहे हैं वो अपना विचार रख रहे हैं, उनको पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो राहुल गांधी जी का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा, राफेल पे भी राहुल गांधी ने मास्टर स्ट्रोक खेला था और चीन पे भी मास्टर स्ट्रोक खेला, फिर वो जो 19 में जब वो बालाकोट हुआ तब भी मास्टर स्ट्रोक खेला और वो जो हुआ, जो भी आज तक राहुल गांधी ने फैसले लिए वो सब मास्टर स्ट्रोक था. तहसीन पूनावाला ने कहा मास्टर स्ट्रोक है, ये भी मास्टर स्ट्रोक देख लेंगे, वो भी मास्टर स्ट्रोक देख लिया. नहीं तो आप क्या कह रहे हैं कि राहुल गांधी विल नॉट विन रायबरेली? अभी आपने बोला आसान सीट है. नहीं, मैंने तो जवाब दिया. मैंने कहा कि रायबरेली उनके लिए आसान है. रायबरेली में तो कांग्रेस की बहुत ही एंटी इनकम्बेंसी है. यही तो मैं कह रहा हूँ, ये बेवकूफ़ी का डिसीजन है. अच्छा, हाँ, एक तो इससे इनका पूरे कांग्रेस वर्कर का मॉरल डाउन हुआ. दूसरा, भारत जो है पॉलिटिक्स में परसेप्शन होता है. परसेप्शन बहुत बड़ी चीज है. परसेप्शन बन गया. मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी भगोड़े, ऐसा थोड़ी मान लेगी जनता. देश की जनता, कांग्रेस का कार्यकर्ता कह रहा है कि ये गलत डिसीजन है. तहसीन पूनावाला, I have 20 seconds. Perception is everything in politics, right? If Rahul Gandhi ends up winning Wayanad and ends up winning Raebareli,
what does he do? Who does he upset? South, where the Congress is strong, or North, where the Congress can do with some help? Just two things. Acharya ji made a wish that Priyanka ji should be in parliament. I also wish she should be in parliament. I hope that leaves some light. But the more important thing that I want to say, look, perception is everything in politics. I agree with Acharya ji. Therefore, Acharya ji, जो वर्तमान सांसद है, जिनका सिर्फ एक ही मकसद है कि राहुल जी को अटैक करना, वो परसेप्शन क्यों दे? परसेप्शन के खिलाफ लड़के देश में एक नई सरकार लाकर 4 जून को जब शपथ सेरेमनी रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद जो शपथ सेरेमनी होगी कांग्रेस सरकार की, तब देखेंगे परसेप्शन क्या होता है सर। आज पहली बार तहसीन पूनावाला का लॉजिक मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चलिए, कांग्रेस ने अपना लॉजिक लगा लिया है, कांग्रेस ने अपना लॉजिक लगा लिया और हमको मुझे लगा तहसीन पूनावाला भी राहुल गांधी की तरह बात करना शुरू कर दिया। अरे देखिए, लॉजिक कांग्रेस ने लगा दिया है। अमेठी चली गई है किशोरी लाल जी को, एंड रायबरेली हैज गॉन टू राहुल गांधी. नाउ द चॉइस विल बी बिटवीन वायनाड एंड रायबरेली. दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू वॉच. वी लीव इट देयर फॉर द मोमेंट. आचार्य जी, once again, thank you very much for coming to the studio. Thank you, Dr. Mishra, thank you very much. Tushar, good to have you on the show. Thank you very much. Tehseen, always good to have you on the show. And Pankaj Vora, thank you very much.